چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے جوڈیشل کمیشن کا پہلا اجلاس 5 نومبر کو طلب کر لیا۔ اجلاس میں آئینی بینچز کی تشکیل سے متعلق اہم پیش رفت متوقع ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے جوڈیشل کمیشن کا پہلا اجلاس طلب کر لیا۔ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 5 نومبر کو سپریم کورٹ میں ہوگا۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ 26ویں آئینی ترمیم اور جوڈیشل کمیشن کی تشکیل 9 کے بعد یہ پہلا اجلاس ہوگا۔ اجلاس میں جوڈیشل کمیشن کے سیکریٹریٹ کے قیام پر بات ہوگی۔ سپریم کورٹ میں آئینی بینچوں کے لیے ججوں کی نامزدگی پر بھی غور کیا جائے گا۔ اجلاس میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس امین الدین شرکت کریں گے۔ اجلاس میں وزیر قانون اعظم نذیر تاڑڑ، اٹارنی جنرل منصور عثمان ایوان، پیپلز پارٹی کے سینیٹر فاروق ایچنائک، نون لیگ کے شیخ آفتاب احمد شرکت کریں گے۔ تحریک انصاف کے عمر ایوب اور شبلی فراز، خاتون ممبر روشن خورشید بھروچا، نمائندہ پاکستان بار کونسل اختر حسین بھی اجلاس کا حصہ بنیں گے۔ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی نے جیلوں میں اصلاحات کا آغاز کر دیا۔ چیف جسٹس کی زیر صدارت جیل اصلاحات سے متعلق اہم اجلاس، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم اور جسٹس شمس محمود کی بھی شرکت۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے کہا کہ ملک بھر کی جیلوں کی صورتحال تشویشناک ہے۔ جیلوں میں گنجائش 66,625 جبکہ قیدیوں کی تعداد 1,08,643 ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب کی جیلوں میں گنجائش 36,365 جبکہ قیدیوں کی تعداد 67,837 ہے۔ قیدیوں میں 36,128 ملزمان ٹرائل شروع ہونے کے انتظار میں ہیں۔ اجلاس میں فوجداری انصاف میں اصلاحات کی حکمت عملی کے ایک حصے کے طور پر جیل اصلاحات اور قیدیوں کے فلاح و بہبود پر توجہ مرکوز کی گئی۔ اب جو کال دیں گے وہ فائنل ہوگی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یمین گنڈا پور کہتے ہیں 17 حملے تو ہماری تاریخ میں ہیں، ابھی تو 2 کیے ہیں، جلسہ منسوخ نہیں کیا۔ 9 نومبر کو ثوابی انٹرچینج پر جمع ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ کے پی ہاؤس میں جو کچھ کیا اس کا حساب دینا ہوگا۔ مجھ پر 1 گھنٹے میں 6 اضلاع میں توڑ پھوڑ کے کیسز بنائے گئے ہیں۔ ایک کیس میں ضمانت ہو جاتی ہے، دوسرے میں گرفتاری ڈال دیتے ہیں۔ گورنر راز سے ڈرنے والے نہیں، صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں، وسائل استعمال کرنا میرا حق ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ناروا سلوک ناقابل برداشت ہے۔ بشرا بیوی کی رہائی میں کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ 17 حملے تو ہماری تاریخ میں ہیں، یہ 17 ٹائمز تو ہم نے کرنے ہیں، وہ تو ہمیں اپنی تاریخ بتا رہی ہے۔ ابھی تو ہم نے 1-2 کی ہیں، اب یہ ایک فائنل کال ہوگی، اور یہ فائنل کال ایسے ہوگی کہ میرے خیال میں اب سر پہ کفن باندھ کے ہم نکلیں گے، کیونکہ پرامن رہ رہے کہ مارے کھا کے اس کے بعد ہمارے ورکر گرفتار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم پرامن ہوتے ہیں۔ پہلے تو ہم 9 تاریخ کو ثوابی کے اوپر ایک انشاءاللہ ایک بڑا اجتماع کر رہے ہیں۔ میں نے تو جلسہ منسوخ نہیں کیا، وہی جلسہ جو ہے 9 تاریخ کو مقام شفٹ کیا ہے اس کا، پاکستان کو کیسے بند کرنا ہے۔ بشرا بی بی کے رہائی میں میں نے کوئی کردار ادا کیا ہے۔ ایک کیس میں ضمانت کراؤ، دوسرے کیس میں اندر کر دیتے ہیں۔ پہلے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، 9 مئی میں میرے اوپر 6 ضلعوں پہ کیس ہے کہ میں 6 ضلعوں میں توڑ پھوڑ کر رہا تھا۔ ایک انسان ہوں، 1 گھنٹے میں 6 ضلعوں میں کام کر رہا ہوں۔ نواز شریف سے امریکہ میں نون لیگ کے عہدیداروں کی ملاقات، کہا دل میں طوفان ہے لیکن بہت سی باتیں نہیں کر سکتا، مجھے زیادہ نہ چھیڑیں، ہمارے اوپر بہت کچھ بیتا، بہت صبر سے کام لیا۔ کے پی میں 11 سال سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے، ریاست مدینہ کے دعوے دار کا کردار اس کے برعکس ہے۔ مریم نواز کی تعریف کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ مریم نواز لوگوں کی حالت بدلنے کے لیے بڑی جانفشانی کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں میں برکت ڈالے اور پاکستان بھر سے بلندیوں کی طرف رواں دواں ہوں۔ اللہ پاکستان کی خیر کرے اور عوام کی خیر کرے۔ دکھ ہے اور ہمارے اندر وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے پی آئی اے کو تباہ و برباد کیا ہے۔ وہ شخص جو وزیر تھا، جو چھپا بیٹھا ہے آج، وہ وزیر تھا اس زمانے میں جس نے وہ اس کے زمانے میں عمران خان کے زمانے میں جس نے کہا تھا کہ پی آئی اے کے جو پائلٹس ہیں ان کے پاس لائسنس جعلی، اندازہ کریں اول تو تھے نہیں، اگر تھے بھی تو یہ بات پبلکلی کہنے والی تھی۔ پی آئی اے اسی طرح سے برباد ہوئی۔ مجھے مریم نے کہا تھا جی کہ آپ صلاح کر رہی تھے میرے ساتھ کہ ہم اپنا پی آئی اے کو ایکوائر نہ کریں پنجاب اور ایک برانڈ نیو ایئر لائن ہم اسٹیبلش کریں اور برانڈ نیو جہاز لے کے آئیں اور برانڈ نیو اپنا ایئر لائن پاکستان کو ہم دیتے ہیں اس کو۔ توشخانہ 2 ایف آئی اے نے بشرا بیوی کی ضمانت کے ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ درخواست میں بشرا بیوی کو دی گئی ضمانت کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بیوی پر توشخانہ 2 کیس میں فرد جرم عائد نہ ہو سکی، دونوں نے بریت کی درخواست دائر کر دی۔
एहतसाब अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। प्रोसिक्यूशन टीम ने बरियत की दरख्वास्तों की मुखालिफत करते हुए मौक़िफ़ अख्तियार किया कि जानबूझकर फर्द जुर्म आयद नहीं होने दी जा रही। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख खरजमन ने अडयाला जेल में केस की समाअत की। साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी अदालत के रूबरू पेश हुए। सलमान अकरम राजा, सलमान सफदर और उस्मान गिल की जानिब से वकालतनामे जमा कराए गए। अदालत 5 नवंबर को बरियत की दरख्वास्तों पर समाअत करेगी। तब तक समाअत मुलतवी कर दी गई। साबिक चेयरमैन PTI की तोशाखाना 2 केस में जमानत की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने दरख्वास्त 4 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत की है। बुशरा बीबी बाद अज़ां पेशावर रवाना हो गई। PTI लीगल टीम के लापता रुकन इंतजार पंजोथा 25 रोज गुजरने के बावजूद बाजियाब न हो सके। एडवोकेट इंतजार पंजोता 25 रोज से लापता हैं। जुम्मे को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरकार की तरफ से 24 घंटों में बाजियाब कराने की यकीन दहानी कराई गई थी। अदालत में यकीन दहानी के बावजूद इंतजार पंजोता की बाजियाबी मुमकिन ना हो सकी। वकील की अदम बाजियाबी पर इस्लामाबाद पुलिस और PTI की आदत ताहाल खामोश है। वाज़ेह रहे कि इंतजार पंजोता की बाजियाबी का केस 4 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर है। वेलकम बैक। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शराब असलहा बरामदगी केस। अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने वज़ीर आला KP के खिलाफ केस की समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। केस की समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशर हसन चिश्ती ने की है। आपको अहम खबर दे रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। साबिक सूबाई वजीर आतिफ खान के खिलाफ एंटी करप्शन का घेरा तांग। महकमा एंटी करप्शन का PTI साबिक सूबाई वजीर आतिफ खान को एक और नोटिस जारी कर दिया गया। आतिफ खान से मर्दान निजी हाउसिंग सोसाइटी की तफसीलात तलब की गई हैं। नोटिस के मुताबिक इश्तिहारात में आतिफ खान को बतौर मालिक देखा गया, जिसकी वजाहत जरूरी है। ज़राई ज़मीन को गैर कानूनी तौर रिहायशी जगह में तब्दील किया गया। हुकूमती फंड्स को निजी सोसाइटी के लिए इस्तेमाल का भी इल्जाम है। PTI के इस्लामाबाद एहतजाज में गिरफ्तार कैदी रिहा कर दिए गए। मुख्तलिफ जेलों से PTI कैदी रिहा होकर पेशावर पहुंच गए हैं। जेलुम जेल से रिहाई के बाद कैदियों को पेशावर पहुंचा दिया गया। कैदियों का पेशावर मोटरवे टोल प्लाजा पर शानदार इस्तकबाल किया गया। फूलों के हार पहनाए गए। मकामी रहनुमा के मुताबिक 60 के करीब सियासी असीरान को जेहलम जेल से रिहाई मिली। 370 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जिनका मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक है वो आज रिहा कर दिए गए। 60 कारकुनान मोटरवे के जरिए पेशावर पहुंचे। मोटरवे टोल प्लाजा पर जिला खैबर और पेशावर के कारकुनों का मकामी रहनुमाओं ने इस्तकबाल किया। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान ने कहा है कि PTI के फैसला को एहतजाज का ऐलान किया दूसरे मुल्क होने वाले इंतखाबात से मशरूत हैं। हकीकी आज़ादी और अमरीकी मुदाखलत नामंजूर के नारे लगाने वाले अमरीकी इंतखाबात में पसंद के उम्मीदवार की जीत की उम्मीदें लगाए बैठे हैं। अमरीका में इंतखाबात वहाँ का अंदरूनी मामला है। तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली अमरीकी इंतखाबात के नताइज मबनी नहीं होने चाहिए। शेरी रहमान ने मजीद कहा कि टुकड़ों और धड़ों में बटी जमात का हर एक फर्द दूसरे पर सवालात उठा रहा है। पार्टी के वकला एक दूसरे से लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं। कारकुनान को इश्तिहार अंगेजी पर उकसाकर तहरीक इंसाफ की क़यादत छुप जाती है। इस सारी सूरत हाल में फैसला कुन एहतजाज की धमकी मज़ाक़ खेज है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है बानी PTI पर तमाम मुकदमा 1.5 माह में खत्म हो जाएंगे। हुकूमत बानी PTI को तोड़ने की नाकाम कोशिश कर रही है। बुशरा बीबी सियासत में आने का इरादा नहीं रखती। बुशरा बीबी सियासत में आए तो खुश आमदीद कहा जाएगा। सूबाई हुकूमत लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बनाने जा रही है। नौजवानों के लिए रोजगार, तालीम और सेहत स्कीमों की इंश्योरेंस होगी। ट्रांसमिशन कंपनी का कयाम से सस्ती बिजली की फरहमी मुमकिन हो सकेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा है कि डील और NRO का नया नाम मुफाहमत है। बैरिस्टर सैफ ने कल बता दिया डील के नाम पर मुफाहमत हुई है। मुल्ज़िमान को प्रमोशन, छुट्टी और इनाम दिया गया। इस इक़दाम से PTI की सोच और मकसद का अंदाजा लगाया जा सकता है। PTI वाले इस वक्त ट्रंप के जीतने का इंतजार कर रहे हैं। PTI वाले अब नया स्टिकर बना लें, हम ही गुलाम हैं। ट्रंप की जीत से पाकिस्तान की सियासत का क्या लेना देना। इस जमात का मकसद ही मुल्क में फितना फसाद पैदा करना है। इनको अपने सूबे के मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं। PTI वाले हर वक्त लाशों की तलाश में रहते हैं। 9 मई के वाकयात में मुलव्वस अफराद का फौजी ट्रायल होना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि KP हुकूमत सिर्फ एहतजाज, जलसे और नाच गाना करने में मसरूफ है। जलसे जुलूस से किसी को आज़ादी नहीं मिल सकती। PTI शायद संजीदा नहीं। अगर बुशरा बीबी को अदालत से रिलीफ मिला तो फिर एहतजाज की क्या जरूरत है।
बुशा बीबी पहले भी सियासत करती थी, यहाँ भी कर रही हैं, सबको मालूम है। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने मजीद कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने PIA खरीदने में दिलचस्पी जाहिर की है। वफाक ही बता सकता है कि क्या KP हुकूमत इस पर संजीदा है या नहीं। अगर सच में लेना चाहती है तो अच्छी बात है। उन्होंने मजीद कहा कि अमन अमान बहाल करने में सूबाई हुकूमत नाकाम हो चुकी है। मैंने वज़ीर आज़म को अमन अमान के लिए खत लिखा, ये सूबाई हुकूमत का काम है। सूबाई हुकूमत इदारों के खिलाफ करारदादें पास कर रही है, रोज लोग शहीद हो रहे हैं। क्या सूबाई हुकूमत कुछ कर रही है? वेलकम बैक। लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन भी स्मोक खत्म ना कर सका। फिज़ाई आलूदगी का रिकॉर्ड टूट गया। सूबाई दारकूमत आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज फिर पहले नंबर पर मौजूद है। DHA के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1319, अमेरिकन काउंसलेट के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1007 हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में हद निगाह 0 हो गई है। मुल्तान और गिरदनवाह में भी स्मोक की शिदत में इजाफा, हद निगाह 700 मीटर तक रह गई। माहिरीन माहौलियात के मुताबिक लाहौर की फ़ज़ा आलूदा तरीन होने हो गई। सांस लेने में दुश्वारी भी हो रही है। शहरी मौजूदा फ़ज़ा में बाहर निकलने से गुरेज करें। बच्चे, बुजुर्ग और बीमार अफराद घर में रहने को तरजीह दें। माहिरीन माहौलियात ने मौजूदा फ़ज़ा को शहरियों के साथ साथ चरिंद परिंद और पौधों के लिए भी नुकसानदेह करार दे दिया। मौसम सरमा की आमद लाहौर यूं तो स्मोक से वबाल जान बन गया है, लेकिन फ़ज़ाई मेयार के आलमी इंडेक्स में लाहौर सर फहरिस्त है। सदरबाब का मुस्तकिल हल ना निकाला जा सका। हर साल इस मसले को हल करने के हुकूमती इक़दामात नाकाफ़ी। स्मोक से मुतासरा दुनिया के दूसरे शहर इस मसले से निमटने के लिए क्या कर रहे हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीन के बड़े शहरों बीजिंग और शियान में स्मोक से निमटने के लिए स्मोक फ्री टावर और एयर प्योरीफायर टावर बनाए गए हैं, ताकि आलूदा हवा को साफ करके स्मोक और फजाई आलूदगी में कमी लाई जा सके। मेक्सिको के दारुल हुकूमत मेक्सिको सिटी में एक अस्पताल की इमारत के बाहर 100 गज की लंबाई में ऐसी टाइलें नस्ब की गई हैं जो हवा को साफ करने की सलाहियत रखती हैं। बरतानिया के शहर लंदन में 2016 में एयर क्वालिटी की जांच के लिए कबूतरों पर पोल्यूशन सेंसर नस्ब किए गए, जिसके जरिए एयर क्वालिटी के बरह रास्त अपडेट्स हासिल करने के साथ साथ शहरियों में फजाई आलूदगी से मुतालिक आगाही पैदा की गई। पोलैंड की दारुल हुकूमत वारसा में फजाई आलूदगी में कमी लाने के लिए 1200 से ज्यादा गैर मियारी चूल्हों को खत्म कर दिया गया। जनूबी कोरिया के शहर सियोल में फजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए 61,000 घरेलू और 480 से ज्यादा माहौल दोस्त बॉयलर मुतारिफ करवाए गए हैं। इंडिया के चंद शहरों का शुमार भी दुनिया के फजाई आलूदगी से सबसे ज्यादा मुतासिर शहरों में होता है। दिल्ली में इस मसले से निमटने के लिए ऑड इवन स्कीम मुतारिफ करवाई गई। रियाज सीजन 2024 में पाकिस्तानी सकाफती हफ्ते के तीसरे रोज तफरीही सरगर्मियां अपने अरूज पर हैं।